अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस बुक क्लब। अच्छा, जो बुक मैंने आज चूज़ की है, इट्स अबाउट नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन अ लैंग्वेज ऑफ लाइफ। दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय मार्शल बी रोजनबर्ग। 1960s में लिखी गई है। मार्शल बी रोजनबर्ग के हवाले से मैं आपको कुछ इसका बैकग्राउंड दे दूं। बाय प्रोफेशन इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। और ये अमेरिकन साइकोलॉजी में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की एक मूवमेंट है। उस मूवमेंट के से काफ़ी ज़्यादा ये मुतासिर था और उस हवाले से उसने ये किताब उस बैकग्राउंड उस कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई है। तो जो आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की साइकोलॉजी की जो डोमेन्स हैं, उसके अंदर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर ये एक डोमेन है जिसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ को जो है वो ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। उसी हवाले से ये किताब लिखी गई है। अच्छा, बुनियादी मकसद वो उसका यही था कि दैट ही वांट टू डेवलप process of partnership where they can basically resolve the conflicts, improve the communication. My name is Dr. Tayyab Ali Khan. I'm administrative from the administrative sciences. So my particular interest is to read this book, that how can we improve the communication in the organization and how can we improve the communication in the family as well. But later you will come to know this book is not only about the communication. The book has a much deeper message for all of us. Okay, the book है, that's a third edition, first printing September 2015. There are 14 chapters, and it has published across 60 countries, selling more than 6 million books in over 35 languages. And the book claimed that it's basically published so much because it works. अगर आप में से जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस बुक के हवाले से, इट्स अ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है। इनकी वेबसाइट्स हैं, यहाँ आर्टिकल्स हैं, थीसिस हैं पीएचडी के, और बहुत सारा काम इसके ऊपर हो रहा है अभी भी, इस टाइम के ऊपर भी। Okay, ji, let me take the some excerpts from the book as well, so you will come to know what is the basically writer writer basically tell us about the non-violent communication. The first is, what is the heart of the non-violent communication? What I want in my life is compassion, a flow between myself and others based on mutual giving from the heart. So that's a basic premises, that humans need to be connected from heart to heart. And he also explained a process. एक process उसने explain किया है through which we can connect with each other at a much deeper level. Okay, to arrive at the mutual desire to give from the heart, we focus the light of the consciousness on the four areas. Four areas हैं, four steps हैं. मैं आपको पहले इसका overall skeleton बता दूं, फिर then we can go a little bit deeper into each component of the four levels of the communication. The first is basically observing that what is happening in that particular kind of a situation, and we are observing without a judgment. और इसके ऊपर मैं अभी और बात करूंगा कि how can we observe without a judgment. Second is about the feeling. How, after observing that kind of an action, how do I feel? What are the feelings? And we will talk about how do we differentiate between the feeling and needs. The third step is need. We say what our needs of are connected to the feeling we have identified. इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी नीड्स जो हैं वो किस तरह फीलिंग के साथ कनेक्टेड हैं। मसलन इन्हीं तीन स्टेप्स को, ऑब्जर्विंग, फीलिंग एंड नीडिंग, अगर हम एक सेंटेंस के अंदर देखें तो देयर इज अ वन सेंटेंस. A mother might express these three pieces to her teenage son by saying, Rehan, when I see two balls of soiled socks under the coffee table and another three next to the tea, I feel irritated because I need more order in the rooms that we share in common. पहली आप स्टेप में देखेंगे उसने ऑब्जर्व किया है, सेकंड स्टेप में उसने अपनी फीलिंग का इजहार किया है, थर्ड स्टेप में उसने नीड के साथ इसको अटैच किया है, और चौथे स्टेप में नाउ शी वांट सम एक्शन फ्रॉम द रेहान. तो हम पहले से उसने ये नहीं कह दिया कि रेहान को कहा कि जो अपनी जुराबें उठाओ और जाके अपनी जगह के ऊपर लगाओ. शी बेसिकली goes through that process, and in the fourth step she said, would you be willing to put your socks in your room or the washing machine? So that is the basically simple process of the communication, जो कि आपको लगेगा कि बहुत सिंपल है, लेकिन हमारी डेली प्रैक्टिस के अंदर हमें कभी कभार हम इस प्रोसेस से होते हुए नज़र नहीं आते, और जिसकी वजह से हमें एक रेजिस्टेंस मिलती है. देखिए, बुनियादी मैसेज ये है कि अदर पर्सन इज लिसनिंग टू यू, एंड जो आप उससे चाहते हैं कि वो करे और उसको विलिंगली वो करे उसको, नॉट ड्यू टू द सम काइंड ऑफ ए गिल्ट, शेम, फियर ऑफ पनिशमेंट, किसी डर की वजह से ना करे, बल्कि वो इसलिए करे क्योंकि वो करना चाहता है.
तो ये उस प्रोसेस के हवाले से आप इन 4 स्टेप्स को जहन में रखिएगा कि इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जर्विंग, second is feeling, third is needing, and fourth step that what do you want from the other person, that comes into the fourth step. अब हम इसको ज़रा सा और डिटेल में देख लेते हैं। 2 पार्ट्स हैं NVC के, इसकी एब्रीवेशन NVC, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, इसको कंपैशनेट कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। एक्सप्रेसिंग ऑनेस्टली थ्रू द 4 कंपोनेंट्स एंड रिसीविंग एम्फेटिकली थ्रू द 4 कंपोनेंट। पहला स्टेप है कि आपने खुद से एक्सप्रेस करना है और दूसरे के अंदर आपने दूसरे की भी उन स्टेप्स को समझना है। अभी हम इसके बारे में से भी बात करेंगे, जब कोई आपसे भी कम्युनिकेट कर रहा होता है वो भी इन 4 प्रोसेस से कहीं ना कहीं गुजर रहा होता है, उसके पीछे भी कोई नीड्स हैं, कोई वैल्यूज़ हैं, उनको कैसे आप कनेक्ट करेंगे। इट इज़ देयरफॉर एन अप्रोच दैट कैन बी इफेक्टली। अच्छा, इसी कम्युनिकेशन की खाली इट्स नॉट अबाउट द कम्युनिकेशन, इट हैज़ अ वाइड एप्लीकेशंस, रिलेशनशिप में, फैमिलीज़ में, स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, जो कि मेरी फील्ड है जिसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा किस तरह ये रिलेट करता है, थेरेपी के अंदर, डिप्लोमेटिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, डिस्प्यूट्स में। इसका रोजनबर्ग का बहुत ब्रॉड एक्सपीरियंस रहा है कन्फ्लिक्ट मीडिएशन के हवाले से, रेजोल्यूशन के हवाले से, काउंसलिंग के हवाले से, जहां उसने NVC के कम्युनिकेशन के प्रोसेस को जो है वो ज़्यादा रिफाइन किया है। अच्छा, इट स्टार्ट, उसने जैसा बुक में लिखा, सूफी पोएट रूमी वंस रोड, आर आउट बियॉन्ड आइडियाज ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग, देयर आर द फील्ड, आई विल मीट यू देयर। रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग, moralistic judgments, you are bad, you have not done this thing. We are using different kind of label when we are communicating with the other people. रूमी कह रहा है कि रात, अच्छा ये भी नहीं, it's not only about the bad thing, it's also about the good thing. You are excellent, you are good, you are superb. There is some kind of a space which is going beyond this good thing and bad thing, the moralistic judgments. अच्छा, moralistic judgment, the word judgments are concerned center on who is what. It is important here not to confuse value judgments. अच्छा, value के हवाले से हम बात करेंगे। value judgments हैं that is preference of your needs, आपकी needs की preference क्या है, वो आपकी value judgments हैं। but moralistic judgments when we are labeling other person, and when we are labeling other person, according to the Rosenberg, actually we are delineating our communication with the other person, making other, एक moralistic judgment, एक comparisons। अच्छा, हाउ टू मेक योर सेल्फ मिजरेबल, आप किस तरह अपने आप को मिजरेबल कर सकते हैं। आप ये सोचें कि जो मेरे साथ हो रहा है इससे कुछ बेहतर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द रोजनबर्ग। अच्छा, इससे भी ज़्यादा अपने आप को अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा मिजरेबल फील कराएं, अपने आप को किसी और से कंपेयर करना शुरू कर दें। आफ्टर सम टाइम योर फीलिंग वुड बी चेंज, आपकी फीलिंग, मिजरी की फीलिंग जो है वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। कंपेयरिंग योर सेल्फ एंड मेकिंग योर वर्थ डिपेंडिंग ऑन द जजमेंट ऑफ समबडी एल्स श्योरली आपको मिजरेबल करेगी, अकॉर्डिंग टू द रोजनबर्ग। रोजनबर्ग ये कहता है कि श्योरली यू फील मिजरेबल, दैट्स अ सिंपल फार्मूला टू गेट मिजरेबल। कंपैरिजन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ द जजमेंट। अच्छा, अनदर इज द डिनायल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश, ऑब्स्कर्स अवेयरनेस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी डिनाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन व्हेन वी एट्रीब्यूट देयर कॉज टू फैक्टर्स आउटसाइड ऑफ आवर सेल्फ। अच्छा, जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, मतलब इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, ये जो मेरी ड्यूटी थी, मेरी जॉब थी, मुझे करना था, क्या करूं जी, मेरी मजबूरी थी। दीज आर ऑल काइंड ऑफ थिंग वेयर यू आर डिनाइंग योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर डिनाइंग दैट यू डोंट हैव अ चॉइस। मैं क्या करता, आई हैव टू, आई शुड। दीज आर ऑल वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच आर बेसिकली थ्रू विच द पीपल आर डिनाइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन एक्शन। बहुत सारे एक्शन आप देख सकते हैं जहाँ लोग इसको कह देते हैं कि जनाब हमारी जॉब थी, हमें काम करना था। अच्छा, एक और वर्ड, अथॉरिटीज़ ने कह दिया था हमें, अथॉरिटी, और लोग, पीपल से दैट वी डोंट हैव अ चॉइस। अकॉर्डिंग टू द रोजनबर्ग, यू हैव अ चॉइस, आपके पास हर सिचुएशन में चॉइस है। इस पर भी हम आते हैं, कोई एक्सरसाइज कर लेंगे। व्हेन वी कंबाइन ऑब्जर्वेशन विद एवेल्यूशन, पीपल एप्ट टू हियर क्रिटिसिज्म। हम ऑब्जर्वेशंस को और एवेल्यूएशन को जब मिक्स करते हैं, जब आप उससे कम्युनिकेट करेंगे, तो पीपल आर गोइंग टू लिसन अबाउट दैट यू आर बेसिकली जजिंग देम, और when they are going to judging them, so they are going to defend themselves. Highest form of human intelligence. Indian philosopher J. Krishnamurti once remarked that observing without evaluating is the highest form of human intelligence. Rosenberg said, when I heard first time, I thought, what is this stupid statement? Then he realized that this is my judgment. I basically observed the statement, but I immediately make a judgment about it. So it is, how do you basically make a space between the observation
and your own evaluation about the observation. Distinguishing observation from evaluation, let's say Jim is ugly, is then observation or evaluation? बताइए. Let's say Jim is ugly. Let's say हम कोई लोकल नहीं यूज़ करते हैं. लोकल का मुझे ये कोई नाम ऐसा आ ना जाए. फरा इज अगली. आई मीन होपफुली फरा ना हो यहाँ इस टाइम. Is this a observation or an evaluation? Is ugly. ये जजमेंट है. इट्स अ जजमेंट. अब हाउ कैन यू बेसिकली आप इसको रीफ्रेज कैसे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रोजनबर्ग. लेट्स से फरा लुक्स डोंट अपील टू मी. rather than having a certain kind of the word, you are addressing to your own needs जो कि आपके साथ उस स्टेटमेंट उस ऑब्जर्वेशन के साथ जो है रिलेट करती हैं. तो इस तरह उसने भारत बहुत सारी एग्जांपल दी हैं इसके अंदर. एंड देन हाउ डू वी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्रेसिंग फीलिंग. उसने कहा कि फीलिंग्स को सप्रेस करना, फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना, इट हैज अ वेरी हैवी कॉस्ट. और फीलिंग विल कम आउट इन अ सम अदर डिस्ट्रक्टिव मैनर. इवन दो यू आर प्लेइंग कूल, आप समझते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट विल कम आउट इन सम अदर मैनर, किसी ना किसी और तरीके से निकलेगा. फीलिंग वर सिंपली नॉट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट. हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर वो कहता है कि उसके ज़माने में उसने कहा कि फीलिंग को इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं किया जाता. उन्हें कहा जाता है जो करिकुलम है, जो बिहेवियर है, जो डिसिप्लिन है, आपने इसी तरह एक्ट करना है. यू आर गोइंग टू एक्ट बिकॉज अथॉरिटीज आर गोइंग टू से दीज थिंग्स टू यू. और फीलिंग की कोई जगह नहीं. फीलिंग्स हैव नो प्लेस ओवर देयर. इमोशंस हैव नो प्लेस ओवर देयर इन द स्कूल सिस्टम्स. Feeling versus non-feeling. A common confusion generated by the English language is our use of the word feel without actually expressing a feeling. For example, in the sentence, I feel I didn't get a fair deal. The word I feel could be more accurately replaced with I think. In general, feelings are not clearly expressed when the word feel is followed by. I feel I did not get the fair deal. उसने कहा, according to this, that is your thinking. That is not your feeling. When you are thinking in the English language, you are replacing the word thinking with your feeling. Feeling has a different kind of the vocabulary, and he shared the vocabulary in the book as well. कि feeling के जो words हैं वो कौन से हैं और जो thinking के words हैं वो कौन से हैं. और English language में हम thinking और feeling को कैसे एक दूसरे से replace करते हैं. Distinguish between what we feel and what we think we are. I feel inadequate as a guitar player. I feel inadequate. This is not the feeling. This is your own judgment about your own self that you are not a good guitar player. Okay, distinguish between what we feel and how we think. Let's do some exercise. अगर मैं आपसे share करूँ, if you read the first sentence, number 1, I feel you don't love me. इस तरह के जुमले कभी आप घर में भी सुन लेते हैं. तो I feel you don't love me. अब would you say कि this is the verbal expression of the feeling? और ये क्या ये फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है या फिर ये फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा? बताइए. नहीं कर रहा. अच्छा, बिल्कुल सही आपने कहा. और देयर कुड बी द रीजन अबाउट दैट थिंग. आई फील you don't love me. Here it's basically judgment. It's basically your judgment that the other person is not loving you. मैं सही कह रहा हूँ सर. आप माहिर लसानियात हैं माशाल्लाह. तो I am sad that you are leaving. अब ये फीलिंग है, कोई जा रहा है तो आपको एक अफसोस हो रहा है. तो बहरहाल उसका कहने का मकसद है कि लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज में तो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है, वर्ड्स के ऊपर भी एम्फसाइज किया, लेकिन आई विल कम टू द अंडरलाइंग मैसेज बिहाइंड दीज वर्ड्स एज वेल. उसका अंडरलाइंग मैसेज वर्ड्स के ऊपर है भी क्या. Feelings are very important part of non-violent communication, but we don't blame other people for our feeling. We connect our feeling to our needs. That's another important message from the non-violent communication. Other persons are not responsible for your feeling. He makes me angry. I am upset because of him. उसने कहा ये जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इतने अरसे से, that we are not differentiating between stimulus and a cause. अब मैं इस बात पे आता हूँ कि how do उसके बकौल अगर आप उसकी ट्रेनिंग कर लेंगे तो यू विल नेवर फील एंग्री ड्यू टू द अदर पर्सन. आपको ये समझ में आ जाएगा कि एंगर की वजह क्या है. ओके जी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फीलिंग. पीपल आर डिस्टर्ब नॉट बाय थिंग बट द व्यू दे टेक ऑफ देम. हाउ डू यू बेसिकली थिंक अबाउट दैट इवेंट? नॉर्मली एक्चुअली ओके, ही मेक्स मी एंग्री, ही मेक्स मी अपसेट.
I react because of him. He is using a bad language. So you are not basically considering one thing, that how you are processing this information, what you are thinking about that thing. Hearing a negative message, अगर आपको कोई negative message मिलता है, for example, somebody is saying that you are the most self-centered person I have ever met. How do you respond to that statement? First, option 1, blame yourself. Oh, I should have been more sensitive. गलती होगी मुझसे, ठीक है, और आपको लगे कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया. Blaming yourself. Second is blaming other. No, that's your problem, not my problem. You are feeling like that, not me. I'm not responsible for your feeling. Option number 3, sense our own feelings and need. When I hear you say that I am the most self-centered person you have ever met, I feel hurt because I need more recognition of my effort to be considerate of your preference. आपने अपनी नीड्स को रिलेट किया, ब्लेम भी नहीं किया, सेल्फ ब्लेम भी नहीं किया, दूसरे को ब्लेम भी नहीं किया, लेकिन उस स्टेटमेंट को अपनी नीड्स के साथ रिलेट किया. और चौथा है कि दैट यू आर पुटिंग द लाइट ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑन द नीड्स ऑफ द अदर पर्सन. अगर एक पर्सन जो है उससे में बात कर रहा है, इस तरह की बात कर रहा है, उसकी कौन सी नीड है जो कि अनएड्रेस है, बियॉन्ड दोज वर्ड्स. देखिए, जब आप ह्यूमन टू ह्यूमन, स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्ट करते हैं, तो फिर आप उसके वर्ड्स को नहीं देख रहे, उसके पीछे जो नीड्स हैं उनको देख रहे हैं जो कि अनएड्रेस्ड हैं. फॉर एग्जाम्पल, आर यू फीलिंग हर्ट बिकॉज यू नीड मोर कंसिडरेशन फॉर योर प्रेफरेंस. और रोजनबर्ग कहते हैं कि हम एज अ ह्यूमन गैस करते हैं नीड के हवाले से, और समटाइम पहले में गैस ठीक हो जाता है, समटाइम नहीं होता. हमें कभी दूसरों की नीड का नहीं पता कि वो क्यों इतना इरिटेटेड है, क्यों इस तरह की बात कर रहा है. ओके जी. डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन, ही ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन गिविंग फ्रॉम द हार्ट एंड बीइंग मोटिवेटेड बाय द गिल्ट. अच्छा, जो बेसिक मैकेनिज्म गिल्ट का है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो दूसरों के ऊपर डाली जाती है कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ क्योंकि तुम ऐसा कर रहे हो, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ क्योंकि तुम ऐसा कर रहे हो. ये वो कहता है गिल्ट ड्रिवन मैकेनिज्म्स हैं, जिसके अंदर हमारी सोसाइटी बड़े अरसे से है, हमारे कम्युनिकेशन के चैनल बहुत अरसे से हैं जो कि गिल्ट ड्रिवन के होते हैं. अच्छा, जैसे अगर कोई पर्सन गिल्ट में आके, शेम में आकर आपकी बात मान भी लेता है, तो कहता है यू आर बोथ एट द लॉस. आप दोनों लॉस के अंदर हैं, क्योंकि एट द एंड ही और आप भी अच्छा फील नहीं करेंगे, वो भी फील नहीं करेंगे. क्योंकि देखिए, जहाँ वो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, दैट वी आर कनेक्टेड एट सम लेवल. तो जब अगला पर्सन शेम और गिल्ट के अंदर काम कर रहा है, तो आप भी उस फीलिंग को शेयर कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू रोजनबर्ग, जजमेंट ऑफ अदर्स आर एलिनेटेड एक्सप्रेशन ऑफ आवर ओन अनमेट नीड. इफ अ वाइफ सेज you have been working late every night this week, you love your work more than you love me, she is saying that her need for intimacy is not being met. It is not about you, it is about her unmet needs. कि आप उसको टाइम नहीं दे रहे, या फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, या कोई इस तरह की बात कर रहा है. हमसे भी लोग करते हैं ना, गिला शिकवा करते हैं, तो हम कभी उस गिले शिकवे को रिएक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं. रोजनबर्ग कहते हैं देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ अनमेट नीड बिफोर दैट काइंड ऑफ अ थिंग. Unfortunately, most of us have never been taught to think in terms of need. We are accustomed to think about what is wrong with other people when our needs have not been met. That is another statement by the Rosenberg. So something as beautiful as need. Achha, what is need to him? How did he define the need? It is the present manifestation of divine energy within us. It's a life force. अच्छा, नीड से आपको ये ना लगे कि लोग, उसने कहते हैं कि समटाइम पीपल इंटरप्रेटेड इन दैट वे दैट नीडिंग है, हमारी बड़ी ज़रूरत है, तो हम एक दूसरे को इतना शो नहीं करते कि हमारी बड़ी ज़रूरत है. उसने कहते इट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ द नीड. नीड इज द डिवाइन एनर्जी विच ड्राइव्स यू, एंड व्हेन यू कनेक्ट टू दैट डिवाइन एनर्जी, दैट विल टेल यू दैट व्हाट डू यू वांट in that particular kind of a situation. Many people in fact have very negative association with need. They associate need with being needy, dependent. ये डेफिनेशन नहीं है. कुछ उसमें बेसिक ह्यूमन नीड्स का पूरा एक सेटअप भी दिया हुआ है, आप बुक में देख सकते हैं. 9 बेसिक नीड हैं. और टू हियर एंड रिस्पेक्ट व्हाट अदर पर्सन नीड डज नॉट मीन दैट यू एग्री विद हिम. अगर आप किसी की नीड को सुन रहे हैं, रोजनबर्ग कहते हैं दैट डज नॉट मीन दैट यू बेसिकली एग्री विद देम. तो ये डिफ्रेंसिएशन है. और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप वही काम करें जो कि वो कह रहे हैं. अच्छा, फिर वो कहते हैं फ्रॉम इमोशनल स्लेवरी टू इमोशनल लिबरेशन. उसकी 4 स्टेजेस बताता है कि इस तरह हम इमोशनल स्लेवरी से इमोशनल लिबरेशन की तरफ जाते हैं. पहली स्टेज, विच आई रेफर टू एज इमोशनल स्लेवरी, वी बिलीव आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीलिंग ऑफ अदर. वी थिंक मस्ट कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू कीप एवरी वन हैप्पी. ये जो लोग हैप्पी प्लीजर, ये जो प्लीजिंग करने की कोशिश करते हैं सब लोगों के, सीकिंग अप्रूवल करने की कोशिश करते हैं, ये वो स्टेज है. इमोशन आप समझते हैं कि जनाब मैं सब लोगों को खुश कर सकता हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल क्योंकि मैं इनको खुश रख रहा हूँ. ये पहली स्टेज है इमोशनल स्लेवरी. सेकंड स्टेज वो कहते हैं ऑब्नोशियस स्टेज. वी फील एंग्री, आई डोंट केयर, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, यू आर फीलिंग इन दैट वे,
इसको वो कहते हैं obnoxious stage. Which is the second. Third stage, at this stage, emotional liberation, we respond to the needs of the others out of compassion, never out of fear and guilt. Third stage, जिसमें liberation की आपको आती है. और जब अगर बच्चे कभी कभार जब when they are expressing themselves, I don't care. Sometimes I heard from the daughter, I don't care. So I come to know that now she is in the second stage. Now she is not seeking an approval from me. Now she is in the second stage. After this stage, there is a third stage come. When they are working for the other people, not due to the fear, guilt and shame, they want it because compassionately they want to give it. That is the basic human nature which he Rosenberg identified. For example, आपसे मैं अगर एक स्टेटमेंट शेयर करूं, अगर आप इसमें बताएं कि टू प्रैक्टिस आइडेंटिफाइंग नीड, प्लीज सर्कल द नंबर इन फ्रंट ऑफ ईच स्टेटमेंट वेयर द स्पीकर इज एक्नॉलेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज और हर फीलिंग. अगर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, पहली स्टेटमेंट, आई फील फ्रस्ट्रेटेड व्हेन यू कम लेट. आप यहाँ बताएं कि क्या ये पर्सन कौन सी स्टेज पे है, क्या ये अपनी फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है या फिर ये दूसरे को ब्लेम कर रहा है. I feel frustrated when you come late. Now you are basically putting your emotions on the actions of the other person. So that's the first stage. अब हम third stage पे देखते हैं. I am sad that you won't be coming for dinner because I was hoping we could spend the evening together. अब इसके अंदर वो explain कर रहा है, अपनी need से उस चीज़ को relate कर रहा है. और then according to Rosenberg, then you feel you don't feel miserable about that situation. ओके जी, रिक्वेस्टिंग दैट वुड इनरिच. अच्छा, ये फोर्थ स्टेप जो कि वांट, जो हम चाहते हैं कि अगला पर्सन हमारे लिए काम करे, दैट इज बेसिकली रिक्वेस्टिंग इन द पॉजिटिव लैंग्वेज. नॉट ऑन दोज, यू डोंट फोकस ऑन दोज थिंग्स विच यू डोंट वांट. ओके, आई डोंट वांट टू डू दैट थिंग, आई डोंट वांट टू ईट दैट आइसक्रीम, आई वांट टू बेसिकली lose weight, so I don't want to do that thing, I don't want to do that thing. Actually, you are focusing on that thing. He used that you need to rephrase that language and rephrase in a certain kind of a positive action words. Anyhow, vague language contributes to the internal confusion. अच्छा, जैसे एक एम्प्लॉयर, अब ऑर्गेनाइजेशन के वाले से बात करें, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को कहे, ओके ऑल ऑफ यू डू सम गुड वर्क, माई डोर इज ओपन फॉर यू. दैट्स क्वाइट वेग. My door is always open for you and good work. What does it actually mean by that thing? Okay, depression is a reward we get for being good. अच्छा, non-violent communication does not mean that you are being good. It's not being nice. इसका मतलब nice और good होना नहीं है. It's about connecting with your need. Depression के वाले से there is a book Revolution the Psychiatry, और Ernest Becker said depression result from cognitively arrested alternatives. Cognitively arrested alternative. आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, आपको पता भी चल जाता है ये आपकी नीड्स के साथ लिंक करती है, और उसके बाद में फिर आप ऑल्टरनेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं, और सोच के सर्कल में घूमते चले जाते हैं. और दिस इज द श्योर वे टू गेट इनटू द डिप्रेशन. कि जब आपको एक पता है कि अगर, अच्छा बहुत से लोगों को कहते हैं नीड्स का पता ही नहीं है अपनी, और वो दो मेटाफर यूज़ करता है, जिराफ्स एंड जैकल्स. जिराफ को इसलिए यूज़ करता है, जिराफ मैमल्स में जो है, एनिमल में सबसे बड़ा एनिमल है, तो उसका हार्ट सबसे बड़ा है, एंड दैट एनिमल टॉक्स. वो कहता है कि हम में से बहुत कम लोग हैं जो जिराफ ईयर्स रखते हैं या जिराफ लैंग्वेज रखते हैं. ज़्यादातर माशरा जो है कंडीशन हुआ हुआ है जैकल लैंग्वेज में, और जैकल जो है वो कम्युनिकेशन पैटर्न में. अच्छा, जैसा हमारी लैंग्वेज के अंदर हम जब थिंकिंग को रोकना हो तो उसने खुद ये वर्ड यूज़ किया. इन द हिंदी लैंग्वेज देयर इज द वन वेरी गुड वर्ड, बस. बस करो. तो बहुत ज़्यादा भी सोच रहा हो ना, उसको हम कहते हैं अच्छा यार बस करो. He basically wrote in the book as well. In the Hindi language, that's a quite good word, bus or bus. Anyhow, so when the other person hears a demand from us, they say two options to submit or rebel. अच्छा, अगर कोई पर्सन आपको डिमांड करता भी है कोई बात, अगर आप उसे डायरेक्ट डिमांड करना शुरू करेंगे, either he can defend or either he can rebel. Unless, अच्छा अथॉरिटी में लोग करते हैं कि हम अथॉरिटी अपनी उनके ऊपर कर लेते हैं. कई बार लोग मजबूरी में काम कर रहे होते हैं, कंपल्शन के अंदर काम कर रहे होते हैं, नॉट विलिंगली. तो कहते हैं एनवीसी इज नॉट फॉर दोज पीपल जो कि लोगों को मजबूरी में काम करवाना चाहती है. एनवीसी इज फॉर दोज पीपल जहां ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग कंपैशन की बुनियाद पर काम करें, एक दूसरे के लिए विलिंगली काम करें. अच्छा, मैं इसको क्विकली आगे की तरफ लेके जाता हूँ. ओके जी. अच्छा, डिफाइनिंग और ऑब्जेक्टिव एंड मेकिंग अ रिस्पेक्ट. अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने जहन के अंदर क्लियर नहीं होती व्हेन वी आर रिक्वेस्टिंग द अदर पीपल. So we are not clear by our own self. तो कहते हैं first of all you need to be clear in your own head that what do you actually want in that situation. What are your needs which have been unmet. उनको आप देखें. Objective of NVC is to establish a relationship based on honesty and empathy.
And when making a request, it is also helpful to scan your mind for the sort of thought that automatically transform request into a demand. For example, क्या हो सकता है? He should be cleaning. She is supposed to do. I deserve to get a raise. I am justified. I have a right. All of these things जो कि आप अपने जहन में कर रहे हैं, these are actually putting up the demands on the other people. So NVC is basically means that if we are putting up demands in our head, so we are putting up the demands on the other people as well. अब मसलन अगर आपने रिक्वेस्ट किसी को एक्सप्रेस करना है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेटमेंट, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी, इज दिस अ रिक्वेस्ट और अ डिमांड? डिमांड. यू वॉन्ट देम टू डू दैट. आई वॉन्ट यू टू स्टॉप ड्रिंकिंग. आई वॉन्ट यू टू स्टॉप स्मोकिंग. अच्छा, कभी कभी लोग अपने आप से भी बात करते हैं, आई वॉन्ट टू स्टॉप स्मोकिंग, आई वॉन्ट टू नॉट टू ईट मोर. यू आर एक्चुअली पुटिंग इन अ डिमांड ऑन योर सेल्फ. और जो सबसे बड़ी वो बात करता है कि कंपैशन शुरू होता है आपकी ज़ात से. सेल्फ कंपैशन एंड सेल्फ फॉरगिवनेस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट. आपकी जो इंटरनल लैंग्वेज है, जब तक वो उसके अंदर नॉन वायलेंस नहीं आएगा, कंपैशन नहीं आएगा, तब तक आप किसी और को कंपैशन देना आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट है. एनीहाउ, अच्छा, एम्पैथी के हवाले से उसने बात की. एम्पैथी और ऑनेस्टी दो चीज़ें बात के हवाले से की, और एम्पैथी और सिंपैथी को उसने डिफरेंशिएट भी किया है. Empathy is respectful understanding of what others are experiencing. We often have a strong urge to give advice. हम लोगों को एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, टीच करना शुरू कर देते हैं, लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, उनकी बात को समझे बगैर. देखें, सिंपैथी ये है कि आप किसी के पेन को, कोई कहता है मैं बड़ा आज दुखी हूँ, तो आप भी दुखी हो जाते हैं, आप कहते हैं अच्छा मुझे भी वो दुख महसूस हो रहा है, ये सिंपैथी है. फिर उस पेन के अंदर जब आप भी इन्वॉल्व हो गए तो आप डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते. यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ दैट पर्सन, दैट व्हाट दैट पर्सन नीड्स इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन. दिस इज हाउ ही बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पैथी एंड द सिंपैथी. Okay, we need empathy to give empathy. When we sense ourselves being defensive or unable to empathize, we need to stop, breathe, give ourselves empathy, scream non-violently and take time out. अच्छा, अगर इंसान ने खुद बहुत भरा हुआ है अंदर से, उसके अंदर खुद बहुत नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है, हाउ दैट पर्सन कैन गिव एम्पैथी टू अनदर पर्सन? ठीक है, किसी और को एम्पैथी देने के लिए आपके अंदर भी तो वो एम्पैथी होनी चाहिए. तो कहता है कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, देन यू टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, आप खुद से स्क्रीम भी करना हो स्क्रीम भी करें, देन यू आर एबल फर्स्ट टू गिव एम्पैथी टू योर सेल्फ, देन यू आर एबल टू गिव दैट एम्पैथी टू द अनदर पर्सन एज वेल. ओके, देयर आर सम एक्सरसाइजेज एज वेल. इसको मैं थोड़ा सा, मतलब पर्सन है, हाउ कुड आई डू समथिंग सो स्टूपिड. ये जो आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हैं ना, कभी कभार चाबी रख कर भूल गए, कोई चीज़ रखी थी नहीं मिल रही है, वो किताब मैंने आज लेके जानी थी एग्जैक्ट अपने लेक्चर से पहले, वो कहाँ रह गई. व्हाट काइंड ऑफ अ टॉक डू यू हैव इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो? आप खुद अपने आप से किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे मैं तो बड़ा स्टूपिड हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, ये नहीं होता. उसने कहा ये सारे नॉन वायलेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन. अच्छा, किसी और को भी कहते हैं, अब सेकंड पर्सन कहता है नो बडी इज परफेक्ट, यू आर टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. This is not empathy. This is a judgment that you are too hard on yourself. You are not connecting at this time, even though you have a best intention to that thing. अच्छा, do you you are, for example, you are not, आपको कहता है जी मैं ये काम कर रहा हूँ वो कर, you are not God. एक पर्सन कहता है उसको, how do that person that thing, हम इससे आगे चलते हैं. अच्छा, the power of empathy, our ability to offer empathy can allow us to stay vulnerable. हम जब खुद एम्पैथी को शो करते हैं, वल्नरेबिलिटी को शो करते हैं, तो अदर पर्सन हमसे ज़्यादा बेहतर तौर से कनेक्ट हो जाता है. वो समझता है कि ये पर्सन की भी कोई नीड्स हैं. ह्यूमन लेवल पे जब कनेक्ट करते हैं तो एम्पैथी जो है, इट्स अ वन वे थ्रू विच वी कैन कनेक्ट द अदर पीपल एज वेल. टाइम एंड अगेन पीपल ट्रांसलेट द पैरालाइजिंग इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल पेन व्हेन दे हैव सफिशिएंट कॉन्टैक्ट विद समवन हु कैन हियर देम एम्पैथेटिकली. वो कहते हैं ना, कभी कभार कोई बात ही आपकी पूरी तवज्जो से दिल से सुन ले तो आधी दर्द वहाँ ख़त्म हो जाती है. हमारे यहाँ भी कहा जाता है, डॉक्टरों के हवाले से कहा जाता है कि अगर वो ये काम कर लें. ओके जी, एनवीसी मोस्ट, इसके वाले से मैंने बात आपसे कर ली. एवेल्युएटिंग और सेल्फ, अवॉइड शूडिंग योर सेल्फ, जो कि एक मोस्ट डेंजरस वर्ड है अकॉर्डिंग टू द, मैं रोजनबर्ग के वर्ड आपसे यूज़ कर लेता हूँ, जो सबसे डेंजरस वर्ड है. वो कहता है इंग्लिश ज़बान के अंदर, इन आर लैंग्वेज देयर इज अ वर्ड विद इनॉर्मस पावर टू क्रिएट शेम एंड गिल्ट. दिस वायलेंट वर्ड विच वी कॉमनली यूज टू एवेल्युएट आवर सेल्फ इज सो डीपली इनग्रेन्ड इन आवर कॉन्शियसनेस that many of us would have trouble imagining how to live without it. It is the word should, as in I should have known better, I should have done that. उसने कहा stop shoulding yourself, stop shoulding other people. That's a one way जिससे आप इस NVC
कम्युनिकेशन को जो है थोड़ा नॉन वायलेंट कर सकते हैं। ओके जी, ट्रांसलेटिंग सेल्फ जजमेंट इन इनर डिमांड्स। कहते जितनी भी सेल्फ जजमेंट्स हैं, दैट्स अ ट्रेजिक एक्सप्रेशन ऑफ अनमेट नीड्स। अदर पर्सन भी जब आपको जज कर रहा है, असल में उसकी अपनी कोई ऐसी नीड है जो एड्रेस नहीं हो रही है, इसलिए वो आपको इस तरीके के साथ जज कर रहा है। अच्छा, सेल्फ फॉरगिवनेस के हवाले से उसने बात की है इस हवाले से, और बहरहाल और उसने कहा बी कॉन्शियस अबाउट द मनी। मनी जो है वो कहते हैं नीड नहीं है हमारी, मनी इज़ नॉट अ नीड। आप ध्यान रखें, अगर आप मनी, डिज़ायर फॉर मनी और अप्रूवल, फियर, शेम और गिल्ट, नो द प्राइस यू आर पेइंग फॉर इट। You are paying a heavy price if you are saying that the money is just a money is a medium to get something, according to him. The most dangerous of all behaviors may consist of doing things because we are supposed to. अच्छा, ये बस आखिरी मैं इसके वाले से बात कर लेता हूँ। हाउ डू एक्सप्रेस एंगर फुली। कहते हैं एक्सप्रेस योर एंगर फुली, डोंट होल्ड योर एंगर। एंगर बेसिकली आपके लिए डैमेजिंग हो सकता है, वो कहता है आपकी लाइफ को शॉर्ट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो एक्सप्रेस योर एंगर फुली। अच्छा, इसके अंदर एक फंडामेंटल डिफरेंस आपने समझना है अकॉर्डिंग टू द रोजनबर्ग, स्टिमुलस एंड कॉज। आपने कभी ये असेसमेंट की दैट पर्सन मेक मी फील एंग्री, उसने कोई ऐसी बात की जो आपको पसंद नहीं आई, आपके मिजाज के ख़िलाफ़ हो गई, आप गुस्से में आ गए, आपने कहा इस पर्सन की, मतलब अंग्रेजी ज़ुबान में देखें ना, आई एम एंग्री एट, एंग्री के कुछ सोर्स है, इसका मतलब है वो पर्सन सोर्स है। उसने कहा असल में आप स्टिमुलस को और कॉज को जो है ना डिफ्रेंशिएट नहीं करें। वो स्टिमुलस है लेकिन उसका कॉज वो थिंकिंग है जो कि आपके अंदर प्रोसेस हो रही है। व्हेन समबडी इज बेसिकली गिविंग दैट काइंड ऑफ स्टिमुलस, व्हाट डू यू से इन योर ओन सेल्फ, एंड दैट बिकम द कॉज ऑफ द एंगर। एंड समटाइम वी बेसिकली मिक्स द स्टिमुलस एंड द कॉज। वी आर नेवर एंग्री बिकॉज ऑफ व्हाट अदर्स से और डू। वी से यू मेक मी एंग्री, यू हर्ट मी बाय डूइंग दैट, आई फील सैड बिकॉज यू डिड दैट। वी यूज आर many language to trick ourselves to believing that our feeling result from what other people do. According to the Rosenberg, feelings are not resulting from the other people's do. Feelings are result from your thinking. What do you think about that particular kind of a situation? Okay जी, आप क्या कर सकते हैं? Blaming and punishing others are superficial expression of anger. अगर आप इसी साइकिल में रहेंगे कि when you are blaming the other people, तो आप emotion liberation की फर्स्ट स्टेज पे हैं। When you are blaming the other people, अगर आप वाकईतन इमोशनल लिबरेशन के अंदर जाना चाहते हैं, तो यू नीड टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। अच्छा, उसने कहा स्ट्रैटेजीज को और आप वांट्स को फ़र्क करें। व्हाट डू यू वांट एंड व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी। तो समटाइम वी नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जांपल, स्टॉप, ब्रीथ, आइडेंटिफाई व्हाट आर माय जजमेंटल थॉट्स अबाउट दैट सिचुएशन। हु इज जजिंग हियर? मी? व्हाट आई एम जजिंग इट? सेपरेट। अब यहाँ तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें माइंडफुलनेस के हवाले से पढ़ ली। ये वो एरा नहीं जहाँ माइंडफुलनेस का है। व्हेन यू आर सेपरेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम थॉट्स, योर इमोशंस, योर सेंसेशन, उस तरह की टॉक उस टाइम पे नहीं शुरू हुई। तब तो ये है ना दैट यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट योर इमोशंस एंड यू आर नॉट योर सेंसेशन, देन हु यू आर। एंड व्हेन यू कम टू रियलाइज दीज काइंड ऑफ ए थिंग, so you become an observer into that kind of a situation, and that liberate you from that cycle of a anger. Express your feelings and unmet needs. We need to take our time both in learning and applying the process of NBC. Anyhow, मैं कुछ इसके आखिरी एक्सक्रिप्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। Life enriching is a key concept in my paradigm. Every action comes out of an image of seeing how human needs would be met by the action, a vision that mobilizes everything. A life in organization. What kind of a enriching organization according to the Rosenberg? हमारी आजकल की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर और न्यूटोनियन प्रिंसिपल्स के ऊपर हैं, जो कि ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई हुई हैं। सर्वाइवल, इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल और एडम स्मिथ की थ्योरीज कैपिटलिज्म के ऊपर इस्टेब्लिश हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, what could be the organization which based on the non-violent communication? Life enriching organization is one in which all works in the organization, everything that every worker does comes out of seeing how it's going to support life in form of meeting needs of the physical planet, trees, lakes, or human beings or animals, and it is clear how life will serve through meeting of needs, and that is the vision that inspires the actions purely. So people are not working for the money, people are working for meeting those kind of the needs, एंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि वो नीड्स के ज़रिए से उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर चल सकें। ओके जी, दैट्स द लास्ट। अकॉर्डिंग टू हिम दैट वी आर यूजिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव लैंग्वेज मेथोलॉजी फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट डिस्ट्रक्टिव मेथोलॉजी रिक्वायर्स सर्टेन काइंड ऑफ लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू हिम, जो इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग यूज़ करें, दैट बेसिकली डीह्यूमनाइजिंग द पीपल।
turns them into objects. So we have learned to think in terms of moralistic judgment of one another. We have words in our consciousness like right, wrong, good, bad, selfish, unselfish, terrorist. ये सारी चीज़ें हमने अपने वर्ड्स बनाए हुए हैं जो कि वायलेंट कम्युनिकेशन को और बढ़ा रही है इस हवाले से. एंड कनेक्टेड टू दोज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन डिजर्व. आप ये काम करते हैं, यू डिजर्व टू गेट पनिश्ड. अब इसके हवाले से और ये थोड़े प्रोवोकेटिव हैं, इसकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उस हवाले से बात डिस्कस भी की जा सकती है. Unfortunately, that's the last statement which I'm going to end. I'm going to end on this excerpt. Unfortunately, for about 8,000 years, we have been subjected to that consciousness. I think that is the core of violence on our planet. Faulty education, the process of non-violent communication, is an integration of thought, language, and communication that I think bring us closer to our nature. It helps us to connect with one another so that we come back to what is really the fun way to live, which is contributing to one another well-being. तो फन वे ऑफ लिविंग, एक दूसरे के साथ ह्यूमन लेवल पे कैसे कम्युनिकेट किया जा सकता है, स्पिरिचुअल लेवल पे कैसे कम्युनिकेट किया जा सकता है, इसके हवाले से रोजनबर्ग के हवाले से बात की है. जहाँ तक आप ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के हवाले से बात करें तो हमारे कई जगहों पे मीटिंग्स में मैनेजर्स के जहाँ आपको एब्यूसिव सुपरविजन नज़र आती है, मैनेजर्स के अथॉरिटी में जहाँ उनको अथॉरिटी का मिसयूज़ नज़र आता है, वहाँ आपको नज़र आता है कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है. और इसका इजहार जो सबॉर्डिनेट्स हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं. और देखें, जो लोग अथॉरिटी में हैं उन्होंने एक लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू रोजनबर्ग, एक लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट किया है ओबीडियंस के लिए, ताकि जो ओबीडियंट हैं वो उसी लैंग्वेज में रहें, वो उन्हीं मामले में बात करते रहें. अरे ऐसा ही होता है, सिस्टम ही यही है, हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है. उसने कहा ये लैंग्वेज आपको कहाँ से मिली है? ये लैंग्वेज अथॉरिटी ने लैंग्वेज दी है ताकि वो आपको जो है उस स्लेविश थिंकिंग के अंदर मुसलसल रखे, कंटिन्यू रखे. बहरहाल इसके हवाले से जो क्रिटिसिज्म है वोकेबलरी के हवाले से, इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, लोगों ने कहा है कम्युनिकेशन की एक ख़ास कमांड होनी चाहिए और लोगों को इतना रिफ्लेक्टिव होना चाहिए कि वो इस प्रोसेस को उस वक्त सोच सकें उस सिचुएशन में. कई बार लोग, आम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो उस प्रोसेस को उस टाइम पे सोच नहीं पाते. बहुत शुक्रिया, आपकी समात को जहमत मिली और थैंक यू. पहला सवाल आप खुद ही कह दिया करेंगे, नहीं मफजल में. Thank you, sir. It's really interesting. I'm Naeem from Chat. Sir, I put this question to you because you understand communication, you work in language, and I am interested in diplomatic communications. I read about it. Henry Kissinger and Daniel Sickert are my mentors. So, sir, how do you classify good diplomatic communications? Second, yes, they follow bureaucratization and everything. Second, they persuade people either with good or bad intentions, our diplomats. And second, what do you say the role of language? For example, if I learn Russian or if I learn German, and what is the role of language in diplomatic communication particularly? अच्छा, ये मैंने शाहजेब साहब के सामने जसारत कर ली कम्युनिकेशन के और लसानियात के, माशाल्लाह माहिर वो बैठे हुए हैं यहाँ. असल में इस किताब के अंदर एक मैं सिनेरियो, आई एम गोइंग टू बेसिकली एड्रेस द डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन वेयर बेसिकली ही रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पैलेस्टीन्स एंड इजराइली ऑक्यूपेशन. एक पुरानी बात उसने कही है, दोनों जगहों के अंदर उसने बिठाया है लोगों को और उसने उसको ना यहाँ कोट भी किया है. एंड द पीपल स्टार्ट विद द जजमेंट व्हेन द पैलेस्टीनियन स्टार्ट. आई मीन ये आज का सिचुएशन से नहीं, मैं पुरानी सिचुएशन की बात कर रहे हैं. दैट यू वांट टू ऑक्यूपाई आवर लैंड, यू वांट टू मेक देम एग्जिट आउट ऑफ इट, और ये सारी बातें उसने यहाँ से शुरू की है. The other person said, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, that you are basically saying wrong things about us. मतलब हम जब उसने कहा है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अबाउट इट. व्हेन यू स्टार्ट विद द जजमेंट्स यू आर नॉट गोइंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, यू आर इंक्रीजिंग द कॉन्फ्लिक्ट एज वेल. आप डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में, आई एम नॉट बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक्सपर्ट, बट दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच विच ही यूज विद द साइकोलॉजिस्ट एज वेल, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट स्टार्ट विद द जजमेंट्स और समटाइम दे आर नॉट पुटिंग द पीपल इन द सेम रूम एज वेल कि अच्छा जी हम उससे बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा वायलेंट ना हो जाए उससे बात. उसने कहा इट्स अबाउट व्हेन द टू पीपल आर कनेक्टेड एट द नीड लेवल. फर्स्ट इट्स इंपॉर्टेंट रादर देन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, इट्स इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट एट द नीड लेवल. व्हेन यू कनेक्ट एट द नीड लेवल देन यू आर एबल टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, नॉट बिफोर दैट. तो ये डिप्लोमेटिक के हवाले से उसका अपना काम है. कॉन्फ्लिक्ट उसने पूरी किताब एक लिखी हुई है. ही रोट एक्चुअली 15 बुक्स. वन बुक जो ये आप बात कर रहे हैं अफ्रीका के कुछ कबीलों में जाके, ट्राइब्स में जाके उसने किस तरीके के साथ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया था, वो इस बुक के आखिर में उसने बुक को रेफ़र भी किया है.
आप उस बुक को देख सकते हैं कि किस तरह डिप्लोमेटिकली उसने उन चीज़ों को जो है वो वहाँ रिजॉल्व किया है इस हवाले से। थैंक यू सर। You're welcome, you're welcome.